A very good morning, dear friends. I welcome you all in online classes by Rajesh Kumar Upadhyay, PGT Biology, Kendriya Vidyalaya Mandsaur. Dear friends, we already started this chapter, how do organisms reproduce, and completed two parts. In part 3, we are going to discuss sexual reproduction in flowering plants. So let us start this topic with a very short revision of the previous topic, that is the structure of flower. Okay, so let us start. So dear friends, the all floral organs can be classified into two category. One is the we can say helping reproductive organs of the flower, and second is called as reproductive organ of the flower. So helping reproductive organs are, these are the sepals and petals. These are the petals, sepals and petals. So sepals are the, we can say, first whorl of the flower, and these are generally green in color and they protect flower in bud condition. Okay, then the next helping reproductive organ is petal, and petal, we can say petal is the second whorl of the flower, which is bright in color. Maybe it is a red, pink, purple, blue, or maybe it is white. Okay, so it is bright in colored and having a nectar gland in the base, in its base, so that due to this attractive color as well as secretion of fragrance from this nectar gland, this particular part of the flower is able to attract insects which come in contact with whenever they come into the flower, and they come in contact with male reproductive organs. At that time they taken pollen grains from this and they can transfer to the next another flower of the same species. Such kind of pollination is called as cross pollination. So this is the part of flower which help in cross pollination, as well as this particular part protects reproductive organ after blooming of flower. Before blooming of flower, sepal protect all the organs of flower, and after blooming the corolla, we can say, corolla or petal protects the flower, reproductive organs of the flower. Okay, after blooming. So the first whorl of the flower, helping reproductive organ, again we will discuss helping reproductive organ, sepal. Sepal is the first whorl of the flower, and it is also called as what? The group of sepal is called as calyx, the group of petal is called as corolla. So these are the helping reproductive organ of the flower. Now we will revise the reproductive organ of the flower. Reproductive organ of the flower, these are the stamen and pistil. Stamen, these are the stamen, is the third whorl of the flower. Stamen, which is consist by a stamen is consist by filament and anther sac. Anther sac will have microsporangia, and where they produce microspores or pollen grains, or these pollen grains are also called as male gametophyte, which produce male gametes. Okay, and next pistil, or we can say, and this चलो स्टेमन के बारे में और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि द ग्रुप ऑफ स्टेमन इज आल्सो कॉल्ड एज एंड्रोशियम. ओके, इसको एंड्रोशियम कहेंगे. ठीक, एंड द सेंट्रल मोस्ट whorl of the flower, that is called as pistil. Okay, and it is consist by, this pistil is consist by stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. This is stigma, style and ovary. Okay, and ovary will have ovule and ovule will have ovum. Okay, so this centralmost flower is considered as a female reproductive part of the flower, and also called as gynoecium. Okay, so this is the recapitulation of this particular we can say structure of flower, and today we are going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, so sexual reproduction in flowering plants, it should be flowering plants. Okay, flowering plants,
can be completed in these three steps. One is the pre-fertilization events, second is fertilization events, and post-fertilization events. So we will study the complete process sexual reproduction in flowering plants in these three steps. One is pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. Okay, pre-fertilization means before the fertilization. At the time of fertilization, what kind of events takes place, and after the fertilization, what kind of events takes place, how the process of fertilization is completed, how the process of reproduction is completed in flowering plants. So these are the three steps. Okay, so first of all, we will discuss about the pre-fertilization events. Let us start. So pre-fertilization events means before the fertilization. Before the fertilization, development of reproductive organs takes place. reproductive organs का development यहाँ पर होगा, and reproductive organ, you know very well about this stamens are called as male reproductive organ, where this pistil is called as female reproductive organ, and these organs will be developed before the fertilization. Okay, so this is the first event का भी first part. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पहला इवेंट ये होगा कि एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ फ्लावर, जब फ्लावर का मैचुरेशन होता है तो उसके जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी मैच्योर हो जाएं. डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल reproductive organ means development of stamens and development of pistil. Okay, so this is the first event of pre-fertilization event. First event under the pre-fertilization event. So next one is the gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes takes place. जब reproductive organs बन गए हैं तो उन reproductive organs में gametes का formation हो. This is the second event under the pre-fertilization events. So inside the anther के अंदर pollen grains होते हैं. pollen grains का formation होता है और pollen grains के अंदर male gametes का formation होता है. आप देखिए, this is the flower. इस फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज एंथर. एंथर स्टेमन है, स्टेमन का ये पार्ट है एंथर, और एंथर के अंदर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है. उसके अंदर मेयोटिक डिवीज़न होंगे, रिडक्शन डिवीज़न होगा, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे जब सेल्स बनेगी तो. ठीक है, और फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. दिस माइक्रोस्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन. तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया, और ये पोलन ग्रेन अब बाद में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे. मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे. सो दैट मीन्स द पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट. ओके, मेल गैमेटोफाइट. इट इज़ नॉट गैमेट, उसको गैमेट मत समझिएगा आप. वो गैमेटोफाइट है जो बाद में मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस तरीके से होगी. मेल रिप्रोडक्टिव कंसेप्ट में मैं बात करूं तो इज अ फ्लावर. फ्लावर के अंदर स्टेमन, स्टेमन का जो एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीज़न हुआ तो उससे बना माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम बोलेंगे पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट. ये पोलन ग्रेन फिर बाद में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा. हर पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, तो ये एक बात हुई. दूसरी फीमेल रिप्रोडक्टिव के कंसेप्ट में बात करें अपन, फीमेल रिप्रोडक्टिव के कंसेप्ट में, तो यहाँ पर ये फ्लावर, फ्लावर के अंदर ये इसका पिस्टिल जिसमें स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी आपको दिख रहा है. ठीक है, अब यहाँ ओवरी के अंदर जो है एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सेक का, और उस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक मेगास्पोरेंजियम, जैसे यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम कहा, यहाँ मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा. इस ओव्यूल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, और ओवम जो है वो फीमेल गैमेट, उसको हम फीमेल गैमेट कहेंगे, ओव्यूल. ठीक है, वापस से देखें, ये फ्लावर, इस फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हमने कहा पिस्टिल. पिस्टिल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. फिर ओवरी में चले अपन, तो ओवरी में जो ओव्यूल बनेगा उसको अपन बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम. इस ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सेक. ठीक है, ओव्यूल के अंदर बनेगा एम्ब्रियो सेक जिसको अपन बोलेंगे मेगा स्पोर. जैसा यहाँ पर माइक्रोस्पोर कहा पोलन ग्रेन को, तो यहाँ पर मेगा स्पोर कहा. ठीक है, माइक्रोस्पोर को आपने मेल गैमेटोफाइट कहा, तो इस एम्ब्रियो सेक को आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट. और उसके अंदर बनेगा ओव्यूल, ओवम, जिसको अपन बोलेंगे फीमेल गैमेट. ठीक है, तो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाएगी. आगे चलें, अब पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी. पॉलिनेशन सिंपल से कंसेप्ट है.
Many a time this question was asked by CBSE, define pollination. What is pollination? What do you mean by pollination? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. The pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the flower known as pollination. तो ये फ्लावर है, इस फ्लावर्स के एंथर से, ये एंथर है, एंथर से पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, दे आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. देन दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्फ पोलिनेशन. लिखिएगा आप, मैंने यहाँ पर नहीं बताया आपको, सेल्फ पोलिनेशन. ठीक है. और यदि ये यहाँ से, इस फ्लावर से यहाँ से पोलन ग्रेन्स चला और वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, तो दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पोलिनेशन. इसको क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई लेके जा रही है पोलन ग्रेन्स को, तो दैट मीन्स दिस इज़ व्हाट क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है. और यदि ये पोलिनेशन, यदि पोलन ग्रेन यहीं से इसी स्टिग्मा में आ जाए बाय विंड और वी कैन से समथिंग एल्स, अलग अलग एजेंसीज के थ्रू, तो इसको हम सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे. तो पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा is called as pollination. And whenever this pollen grain transfer from anther to the stigma of the same flower, then it is called as same pollination, self pollination. Or whenever it is transfer from anther of one flower to the stigma of another flower, then that is called as what? Cross pollination. तो ये दो तरीके के pollination यहाँ पर हो सकते हैं. ठीक है. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही चल रहा है. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही पोलिनेशन कंप्लीट हो गया. तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने वापस से एक बार आप कहें तो पीछे मुड़ के देख लेते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेटोजेनेसिस. उसके बाद में क्या हुआ? पोलिनेशन हो गया. ठीक है. अब यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट्स को लेकर कहाँ चला गया? स्टिग्मा के ऊपर चला गया है. ठीक है. ओके. अब यहाँ पर एक और, चाहे तो बड़ी क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं, आप चाहें तो आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर भी. जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में ये इस तरीके से जर्मिनेट होता है, अपनी एक पोलन ट्यूब रिलीज़ करता है और उस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमेट रिलीज़ करता है, मेल गैमेट 1 एंड मेल गैमेट 2. ठीक है. ये स्टिग्मा के ऊपर, ये जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ आएगा, अटैच हो जाएगा और यहीं पर इसका जर्मिनेशन होगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन. सो दैट दिस पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म अ जर्म ट्यूब. इसको एक बोलेंगे अपन जर्म ट्यूब. और उस दिस पर्टिकुलर जर्म ट्यूब विल कैरी 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम दिस स्टिग्मा टू स्टाइल एंड टू ओवरी एंड टू ओव्यूल वेयर ओवम इज वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. तो यहाँ ये पोलिनेशन के बाद में एक इस स्टेप को भी आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब. जर्म ट्यूब विल कैरी 2 मेल गैमेट्स एंड these male gametes will transfer by germ tube from stigma to style and style to ovary and ovary to ovule. इनसाइड द ओव्यूल वी कैन से एम्ब्रियो सेक वहाँ पर, और एम्ब्रियो सेक में जो ओवम है वहाँ तक इन गैमेट्स को लेके जाया जाएगा. ठीक है. तो वीडियो को पॉज करके इस स्टेप को आप लिख लीजिएगा, रे डायग्राम के थ्रू लिख लीजिएगा. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो पोलिनेशन हो गया, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन हो गया. पोलन ग्रेन जर्मिनेशन के बाद में गैमेट्स कहाँ पहुँच गए? मेल गैमेट्स कहाँ पहुँच गए? ओव्यूल तक पहुँच गए, ओव्यूल तक पहुँच गए. तो अब यहाँ पर क्या होगी? सिनगेमी. सिनगेमी का मतलब फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है. फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज कॉल्ड एज सिनगेमी और आल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. सो नाउ वी आर टेकिंग फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया है और हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पर गैमेट्स का फ्यूज़न होने वाला है, फर्टिलाइजेशन हुआ. दीज मेल गैमेट्स ट्रेवल थ्रू पोलन ट्यूब इन द स्टाइल एंड रीच टू द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल. द 2 gametes fuse together. 2 gametes मीन्स कौन से? 2 gametes मीन्स कौन से? 2 gametes मतलब 1 मेल गैमेट जो पोलन ट्यूब से आ रहा था. पोलन ट्यूब मैंने आपको बताया था फर्स्ट मेल गैमेट. ठीक है. और सेकंड मेल गैमेट. तो ये फर्स्ट मेल गैमेट, यहाँ जो हम ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ आपको, ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल. इस ओव्यूल के अंदर ये है ओवम. तो इस ओवम में, ओवम का और इस फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाएगा. तो ये जो
हैप्लाइड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके पास थे, ठीक है, और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल गेमिट के पास में, दोनों फ्यूज़ होके ये 2n बनाएगा। 2n पहली सेल बनेगी, ठीक है, फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ जिसको अपन कहते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूज़न बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमिट्स, मेल और फीमेल गेमिट का फ्यूज़न, और उस फ्यूज़न के बाद में एक डिप्लॉइड सेल 2n सेल का फॉर्मेशन हो रहा। n इज़ ओव्यूल, n इज़ फर्स्ट मेल गेमिट, ठीक है, दोनों का फ्यूज़न हुआ तो क्या बना? 2n, डबल क्रोमोसोम्स आ गए, पैटर्नल मैटरनल जिसको आप बोल सकते हैं। अब ये जो ऑफ स्प्रिंग है इसके पास दोनों होंगे, पैटर्नल होंगे, फादर के कैरेक्टर्स भी होंगे, मदर के कैरेक्टर्स भी होंगे, ठीक है, और इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे? जाइगोट। इस जाइगोट में लगातार माइटोसिस हो जाएंगे, लगातार माइटोटिक डिवीजन हो जाएंगे, तो एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा जो बाद में क्या बनाएगा? जो बाद में एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से सीड बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फेट ऑफ जाइगोट्स? फेट ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फ्यूचर क्या होगा? फेट क्या होगा उसका? कि जाइगोट जो है, जाइगोट क्या होगा? जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, और एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो सीड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज द वी कैन से फ्यूचर, जाइगोट का फ्यूचर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फ्यूचर सीड, ठीक। फॉर्म विच गेट्स कन्वर्टेड, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो गई। अब एक और बात, मैंने आपसे कहा था कि 2 मेल गेमिट आते हैं पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब में 2 मेल गेमिट आते हैं, 2 मेल गेमिट आते हैं, पहला मेल गेमिट और दूसरा मेल गेमिट, और इधर ये ओव्यूल के अंदर ये हमारा ओवम। तो मैंने कहा आपको अभी बताया कि ये दोनों फ्यूज़ हो गए, ओवम का न्यूक्लियस और फर्स्ट मेल गेमिट, है ना, दोनों फ्यूज़ हो गए, तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया, ठीक, बिल्कुल सही बात है। अभी ये सेकंड मेल गेमिट क्या करेगा? ये सेल सेकंड मेल गेमिट जो होता है ना, यहाँ पर एक और न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियस। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियस, जो कि ऑलरेडी 2n होता है। कैसा होता है? 2n होता है, ठीक है। इस पोलर न्यूक्लियस से ये सेकंड मेल गेमिट फ्यूज़ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 2n, और ये जो इधर से आ रहे हैं तो n ही है, तो ये क्या हो जाएगा? 3n, ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। 3 हर पेयर में 3 क्रोमोसोम होंगे इसके पास, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर होते हैं? 46 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, हर पेयर में 2-2 क्रोमोसोम, हर पेयर में 2-2 क्रोमोसोम है, ठीक है। इस तरीके से 23 पेयर हुए। तो इस ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर में हर पेयर में 3-3 क्रोमोसोम होंगे, 3-3 क्रोमोसोम होंगे। 2 तो फीमेल वाले पहले से ही थे और एक मेल वाला आ गया, तो 3-3 हो गया, ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे इसको? इस ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बना? द फर्टिलाइजेशन बिटवीन पोलर न्यूक्लियस, यानी कि पोलर न्यूक्लियस आप किसको बोल दीजिए? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दीजिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस। द फ्यूजन बिटवीन सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड सेकेंड मेल गेमिट। सेकेंड मेल गेमिट और सेकेंडरी न्यूक्लियस के फ्यूजन से एक ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बना, जिसको अपन ने कहा एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? ये यहाँ जो जाइगोट बन गया है, ये जो जाइगोट बन गया है, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब देखिए वापस से मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमारा ओव्यूल, मतलब ये जो इस प्लांट का ओव्यूल, ओके, ओव्यूल में ये इसका ओवम था, ये यहाँ से पोलन ट्यूब आई, और इस पोलन ट्यूब में ये फर्स्ट मेल गेमिट था, ये सेकंड मेल गेमिट था। फर्स्ट मेल गेमिट यहाँ चला गया और इसको फ्यूज़ कर दिया, और ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट, ठीक है, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। अभी यहाँ एक कौन सा न्यूक्लियस है पहले से? पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस, आप सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल दीजिए, सेकेंडरी और 2n कर दीजिए इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस। एक्चुअली मैं बार बार पोलर न्यूक्लियस आपको क्यों बोल रहा हूँ? पोलर न्यूक्लियस इसलिए बोल रहा हूँ कि चलिए, यहाँ पर क्या होते हैं? 2 हैप्लाइड न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ पर 2 हैप्लाइड न्यूक्लियस होते हैं, 2 हैप्लाइड न्यूक्लियस होते हैं ऐसे। ये हैप्लाइड न्यूक्लियस जब तक कि ये सेकेंड मेल गेमिट आए, तब तक ये आपस में ही फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सेकेंडरी, पहले इनको पोलर न्यूक्लियस बोलेंगे, और बाद में जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे तो इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये जो सेकेंड मेल गेमिट था, ये इस पोलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से रिलीज़ होकर यहाँ चला जाएगा और इसको फर्टिलाइज़ कर देगा। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस जो थे, जो पहले से 2n थे, n और n 2n हो गए थे, और अब ये फिर एक n मेल गेमिट यहाँ पर जुड़ गया, तो 3n हो गया, ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर हो गया। ये ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर जिसको आप क्या कहेंगे? एंडोस्पर्म कहेंगे। क्या कहेंगे?
एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म जो है ये बाद में बहुत सारा माइटोटिक सेल डिवीज़न करेगा। ये जो सेल है इस सेल में एक डिवीज़न हुआ तो दो ना, ये इस सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इस सेल की बात कर रहा हूँ जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जिसको बोलते हैं। ये सेल बनी, इस सेल में एक डिवीज़न हुआ, दो सेल बनी, दूसरा डिवीज़न हुआ, चार बनी, तीसरा डिवीज़न हुआ, चौथा डिवीज़न हुआ। इस तरीके से नंबर ऑफ सेल्स इसकी लगातार बढ़ती जाएगी और ये पूरी के पूरा जो एम्ब्रियो सेक का जो पार्ट है ये सेल्स से भर जाएगा, मतलब एंडोस्पर्म से भर जाएगा, न्यूट्रिएंट से भर जाएगा। और इतना न्यूट्रिएंट जब ये एंडोस्पर्म इसको टच करेगा, यहाँ पर इस जाइगोट को टच करेगा, तब जाइगोट को पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे लिए पर्याप्त न्यूट्रिएंट हो गया है। तो अब ये जाइगोट डिवीज़न शुरू करेगा और ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा जाइगोट, तो ये इस पूरे नरिशमेंट को, इस पूरे न्यूट्रिएंट को चट कर जाएगा, इसको खा लेगा और कम्प्लीटली ये एंडोस्पर्म कम्प्लीटली ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। एक एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे इसको डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगर यहाँ कोई चीज़ आपकी क्लियर नहीं हुई तो आगे क्लियर हो जाएगी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। ओके, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स क्या हैं? ठीक है, फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अ जाइगोट इज फॉर्म्ड विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। दिस गिव्स राइज टू अ न्यू सीड। उस एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? नया सीड बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट बात हो गई। देन ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रेजुअली टर्न्स इनटू अ फ्रूट। ठीक है, जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये ओव्यूल था, यहाँ ये ओव्यूल था, हाँ ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल, इसके अंदर जो ओवम था वो फाइनली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया और एम्ब्रियो से सीड बन गया, तो ये यहाँ पर सीड बन जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्रूट कौन बना? तो ये जो ऊपर ओवरी का जो पार्ट था, जो ओवरी की जो लेयर थी, ये ओवरी की लेयर जैसे ही यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा और सीड बनना शुरू होगा, तो इधर ये ओवरी जो है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस सीड इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। अब आप कहेंगे ये कहाँ जाएगा? स्टिग्मा कहाँ जाएगा? स्टाइल कहाँ जाएगा? तो देखिए, अब वापस से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक, ये था कैलिक्स, ये था करोला। ठीक है, कैलिक्स, करोला, और ये था स्टेमन। ठीक, अब कैलिक्स का क्या फंक्शन रहता है? कैलिक्स का फंक्शन रहता है फ्लावर को बर्ड कंडीशन में प्रोटेक्ट करने का। तो जब फ्लावर ब्लूम हो जाएगा तो कैलिक्स का काम ख़त्म, ये कभी भी टूट के गिर सकता है। ठीक है, करोला का क्या फंक्शन होता है? करोला का फंक्शन होता है, करोला यानी कि पेटल्स। पेटल का क्या फंक्शन होता है कि वो ब्राइट कलर का हो, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फ्लावर ब्लूमिंग होने के बाद में उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उनको मैच्योरेशन तक उनको प्रोटेक्ट करे। तो जब वो मैच्योर हो गई, ये अपना जो एंथर है ये मैच्योर हो गया, स्टिग्मा मैच्योर हो गई। ठीक है, एंथर से जो है वो पोलन ग्रेन्स बन के यहाँ चला गया, पोलिनेशन हो गया। ठीक है, तो एंथर का काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्टिग्मा जो था वो इस स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन को अटैचमेंट प्रोवाइड करना है तो वो उसने कर दिया, पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो गई। ठीक है, तो इसका काम भी ओवर हो गया। तो कुल मिला के जैसे जैसे इनका काम पूरा होता जाता है, इनका फंक्शन ओवर हो जाता है। करोला का फंक्शन हो गया कि फ्लावर को जो है पोलिनेशन करवाना है, तो पोलिनेशन कंप्लीट हुआ। अब कोरोला यानी कि जो पेटल है वो कभी भी डिटेच होकर गिर सकता है, टूट के गिर जाएगा। ठीक है, स्टेमन का क्या काम क्या था कि भाई फिलामेंट और ये जो एंथर थे, इनका फिलामेंट का काम था कि अपने टॉप के ऊपर एंथर को बियर करे। ठीक है, और एंथर का क्या काम था कि वो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करे। तो उसने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर दिया, पोलन ग्रेन यहाँ चला गया स्टिग्मा के ऊपर, तो अब एंथर का काम कंप्लीट, एंथर कभी भी डिटेच होकर गिर सकता है। ठीक है, स्टिग्मा का काम था कि पोलन ग्रेन्स जो पोलिनेशन के बाद में आए हैं उनको अटैच करवाएं अपने ऊपर। ठीक है, उनको जर्मिनेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करे, तो जर्मिनेशन हो गया। अब ये स्टिग्मा कभी भी ख़त्म हो सकता है, ये क्लॉट बन जाएगा, यहाँ क्लॉट बन जाएगा। स्टाइल का क्या काम था? स्टाइल जो था वो पोलन ट्यूब को इलांगेट करने का काम करता था कि भाई पोलन ट्यूब लंबी हो जाए और मेल गेमिट्स अंदर तक पहुँच जाए। तो जब पोलन ट्यूब इलांगेशन हो गया तो स्टिग्मा का भी काम खत्म हो गया, स्टिग्मा खत्म हो जाएगी, वो डिटेच होकर गिर जाएगी। ठीक है, स्टाइल भी गिर जाएगी। तो ये सब सारे ऑर्गन यहाँ तक सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, अब बचा इसका काम, ओव्यूल
ये जो ओव्यूल था ये फाइनली यहाँ ओव्यूल के अंदर ओवम से एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो से सीड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये बचा हुआ जो ओवरी का पार्ट है, भाई स्टिग्मा खत्म हो गया, स्टाइल खत्म हो गया, बचा हुआ ओवरी का पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से हमने इसको डिस्कस कर लिया है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए, अब ये 11th क्लास का एक डायग्राम मुझे मिला, इसको पूरे एंजियोस्पर्म जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये कोई प्लांट था जिसमें ये फ्लावर आया। ठीक है, फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद में डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, पिस्टिल का डेवलपमेंट हो गया, स्टेमन का डेवलपमेंट हो गया, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का डेवलपमेंट हो गया, और स्टेमन में एंथर, फिलामेंट का डेवलपमेंट हो गया, यानी कि कंप्लीट गाइनोशियम और एंड्रोशियम का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्टाइल थी, ये जो पिस्टिल थी, इसका जो ओवरी वाला पार्ट है, उस ओवरी वाले पार्ट के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ओव्यूल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर ये ओवम, यहाँ जो रेड कलर से बताया हुआ है ये ओवम। ठीक है, ये ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियोसेक, और इस एम्ब्रियोसेक के अंदर ये यहाँ पर ये एग या ओवम जिसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, वापस से लेके चलें। ठीक है, ये फ्लावर के अंदर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये ओवरी वाला पार्ट, ओवरी वाले पार्ट को में जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहेंगे। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर बनेगा जिसको अपन एम्ब्रियोसेक कहेंगे। उस मेगा स्पोर के अंदर फीमेल गेमिट बनेगा जिसको अपन बोलेंगे ओवम। ठीक, अब इसी तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन में का ये पार्ट एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगा। उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। जिन माइक्रोस्पोर को अपन क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होता है पोलन ग्रेन, तो ये अपने ट्यूब में 2 मेल गेमिट्स को लेके आता है, 2 मेल गेमिट्स को लेके आता है। देखिए, ये 2 मेल गेमिट्स को लेके आया, तो एक मेल गेमिट ने तो इस एग को फर्टिलाइज किया और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। दूसरे मेल गेमिट ने ये यहाँ पर देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस अंदर डायग्राम में दिख रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस को फर्टिलाइज किया और एंडोस्पर्म बनाया। क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया। तो यहाँ जब एंडोस्पर्म बनेगा और यहाँ जो ये जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट और ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट करके पूरा एम्ब्रियोसेक भर देगा, डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स बनाएगा। ठीक है, पूरा एंडोस्पर्म भर देगा, और जैसे ही ये इस जाइगोट से टच करेगा, ठीक है, जाइगोट को पता चल जाएगा कि मेरे लिए न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त हो गया है। अब जाइगोट डिवीज़न शुरू करेगा और इस एंडोस्पर्म को खाते हुए ये पूरा के पूरा डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से डेवलपमेंट इसका शुरू होगा ऐसे, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एंडोस्पर्म को चट कर जाएगा और ये फाइनली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा। ये एम्ब्रियो बन जाएगा। ये एम्ब्रियो बाद में सीड्स का फॉर्मेशन करेगा और सीड जर्मिनेट करके वापस से नया प्लांट बनाएगा। ठीक है, यहाँ से एम्ब्रियो के बाद में सीड का फॉर्मेशन होगा, और ये ओवरी का जो बचा हुआ पार्ट जो था बाहर वाला पार्ट, वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगा। तो फ्रूट के अंदर सीड, ठीक है, जब फ्रूट टूट के नीचे गिरेगा या तो फ्रूट को खा लिया जाएगा डिफरेंट बर्ड्स या उनके थ्रू, और सीड्स जो निकलेगा वो सीड वापस यहाँ जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर जो है वो नए प्लांट्स को बर्थ करेगा। सो दिस इज़ द वी कैन से द लाइफ साइकिल पैटर्न ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। एक फ्लावरिंग प्लांट जो होता है वो इस तरीके से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि हाउ फ्लावरिंग प्लांट्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, कैसे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर लिख के मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, मैं अपने व्हाट्सएप को मोबाइल पर ओपन नहीं करता हूं, आपको ऐसा ना लगे कि मैं उसको नहीं देख रहा हूं। मैं अपने लैपटॉप में उसको ओपन करता हूं, वहां पर मैंने व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड कर रखा है और आपकी फ़ाइल बिल्कुल तैयार की जा रही है। इंटरनल मार्क्स के लिए इन सभी जो भी होमवर्क या असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं ये इंटरनल मार्क्स के लिए कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं दिया जा रहा है। एक सप्ताह में सिर्फ 2 क्लास हो रही है, 2 क्लास में आपको 2 छोटे छोटे से वर्क दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल करिए और पहुंचाइए ताकि आपकी इंटरनल मार्किंग जो है वो बहुत अच्छी हो। और वीडियोस जब आप देखें, नोट्स बनाएं,
और उसको लिखें, समझें, ताकि आप CBSE एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।